I was just hearing yesterday's Ujjain that what do you call, जो Zoom में चल रहा था, तो उसमें अम्बरीश प्रभु and then Loknath Maharaj etc. They made some points, so I thought I'll just recollect those happenings on that wonderful day of 10th February 2006 when this temple was opened. So I had the good fortune of coming here, but just a prelude to that. For years it was like the government in West Bengal was not allowing us to expand in Mayapur. They were putting so many hurdles. And that is why Ambarish Prabhu was so frustrated that Srila Prabhupada had given him the task of building this TOVP. But he was unable to do anything there. So at that time, they came in the press that it is not possible in West Bengal to build this TOVP. We'll have to look for. Within, I think, 1 or 2 days, chief ministers of 4 or 5 states or their personal secretaries phoned up our Calcutta temple or Mayapur temple, and they were willing to give us land, any amount, and all the, what you call, benefits they require, all the things they require, to build a temple in their state. So that was the condition. And then I think with Ambarish Prabhu and Guru Maharaj decided he will come to Ujjain. The Muma Bharati was the chief minister, and she personally invited him, Guru Maharaj, and even let out the state government's aeroplane for him to travel. So that was the condition, and he chose Ujjain. So after that, things started rolling. But I came here, I think, in 2004 end, when nothing was there. I just heard that land has been allotted. I came and saw this land from outside. I just passed by. And I then told Guru Maharaj, I mean, this land is quite low if it floods and all. He said, Ujjain doesn't flood. So that was the remark. But then I saw the structure had gone up. So after that, just like Bhajanta Krishna Prabhu just said, is magician. When I came on 9th of February, then I saw the magic. What was only land, it has been transformed into 3 buildings. The temple, the Brahmachari ashram, and the guest house. All 3 were complete. So that particular day morning, I will particularly remember Guru Maharaj sweeping the floor in the temple. Acha, I would just like to ask, who were there on 10th February 2008? You were there, Varunakshi Prabhu was there. Acha, you were there. Acha. Very nice. So that was a great day. Others of you were not that, were not there on that day, but we 3 or 4 of us are here who were there on that particular day. So, right, it started from sweeping the floor, and like yesterday they were mentioning that that was one of the greatest gatherings of GBCs and sannyasis who came to the opening of the temple. It was a great gathering. It was such a wonderful gathering, and all the arrangements that were made for even the ordinary devotees to come and stay here. And I remember that time Bhakti Maharaj, he was in such a tense way, how to make arrangements for everybody, whatever it is. And then after that, as the opening ceremony started, I mean, there was I think a plane, it was a plane went overhead the temple and scattered flowers. Then one of our star attractions in those days, Rani Mukherjee, came, and she was like, thousands of people gathered on the, walls and trees
just to not to see the temple but to see Rani Mukherjee. So yeah, that day, and Guru Maharaj took care. And that day I also first saw Mahakal temple priests come here and gave those offerings for the temple, etc. So that was a gala opening we had, that ceremony. And then in the evening, I'll say, I'll never forget that scene where all our top kirtaniyas like Loknath Maharaj yesterday was there, then Indradona Maharaj, then Bibi Govinda Swami, Guru Maharaj. That night's kirtan is unforgettable. If you have recordings, that will be wonderful. That and then the deities, seeing the deities, etc. And it was really a great day, which I had the very good fortune of. So I'll cut it short. Only the thing I think, there's a word in Bengali. There's a small saying in Bengali, "Je daant thakte daante morjada dena." When we have teeth, we don't use the, rather we forget about the teeth, what function it is doing. Now when we have lost that teeth, like we have lost Guru Maharaj, then this thing comes into our mind. What have I missed? Why did I not follow his instructions as he told me to? This, that, so many things come cropping up. And I feel very sad, and at the same time, like one who is a pure Vaishnav, he always forgives. So I know he has forgiven all my mistakes. So many grave mistakes I've done. So I'm very, very grateful to all the devotees over here. For the last 12 years I'm staying over here, and they have given all their love, though I have not given them the proper honor or respect. So I beg to all of you that I may be able to continue here under the guidance of Guru Maharaj, Srila Prabhupada, and all of you, and serve you in whatever small way I can. Thank you very much. Hare Krishna. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारुषामनीति नामिने स्निग्धसित सुप्रणत भाग्विनाम चारुषप्रदम पवपादगत प्राणनोमि भक्ति चारु। एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं गुरु महाराज का गुण कीर्तन कहाँ से शुरू करूँ। गुरु महाराज का पर्सनालिटी इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना महान है, इतना विस्तार है, मतलब हम लोग महीने भर भी बताएंगे तो पूरा ख़त्म ही नहीं होगा। तो गुरु महाराज के साथ बीता हुआ जो टाइम, उसका जो कुछ जो स्मृतिचारण है वो मैं करता हूँ। मैं इस्कॉन में ज्वाइन किया 2000 साल में मायापुर में। तब हमारा न्यू डिवोटी ट्रेनिंग चल रहा था वहाँ पे। तो उस टाइम जो कौन किससे दीक्षा लेंगे एक तैयार हो जाता है एक आध महीने के अंदर। तो मुझे भी बताया आप भी नाम लिखाइए कौन गुरु महाराज से आप दीक्षा लेना चाहते हैं। तो मैं उस टाइम नाम नहीं लिखाया क्योंकि उस टाइम मेरा मन में ऐसा नहीं हो रहा था मैं किससे दीक्षा लूँ। तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही जो कलकत्ता मंदिर उस टाइम बेदखल था, तो मंदिर को मतलब दखल लेने के लिए मायापुर से हम सबको भेजा था कुछ डिवोटी को। तो उसके अंदर मैं भी था। तो हम लोग आके कलकत्ता में सब मारपीट भी किया। तो जो भी है उस टाइम हम लोग कलकत्ता मंदिर हमारा इस्कॉन के प्रॉपर इस्कॉन के अंडर में आ गया था। तो उसी साल में हम लोग रथ यात्रा बनाया था कलकत्ता में। तो उस रथ यात्रा में जो वो विक्टोरिया मेमोरियल है ना, उसके पास में जो खाली ज़मीन थे वहाँ पे पंडाल लगता था वहाँ पे। तो शाम को जो
पैंडल प्रोग्राम होता है, वहाँ पे प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, तो वहाँ पे सब हम लोग बैठा हुआ है, सुन रहा है। तो गुरु महाराज उस टाइम गुरु महाराज का लेक्चर है। तो वही पहली बार मैं गुरु महाराज को वहाँ पे देखा, मेरा दर्शन हुआ। तो मैं जब गुरु महाराज का ये कीर्तन सुना बा उनका बोलने का जो मीठापन, तो ये, और जब उन्होंने मतलब बांग्ला में प्रवचन दे रहे थे, तो सुन के तभी मेरा मन में ये हो गया, मैं तो गुरु मिल गया है, मैं तो इनसे ही दीक्षा लेंगे। तो उसी साल में ही, मतलब वही रथ यात्रा के अंदर ही हमारा दीक्षा हुआ कलकत्ता मंदिर में। तो मेरा मैं सौभाग्यशाली हूँ जो गुरु महाराज से मेरा दीक्षा हुआ। गुरु महाराज जैसा गुरु मुझे प्राप्त हुआ। तो कलकत्ता मंदिर में मेरे ये सौभाग्य मिला था। मेरा दीक्षा के कुछ दिन बाद ही कलकत्ता में जो एक, अब सबको मालूम है, जो कलकत्ता में रहते थे गया गुरुसदाई रोड बोल के एक ये है कलकत्ता मंदिर के पास, वहाँ पे रेस्टोरेंट था, गोविंदास रेस्टोरेंट। तो वो रेस्टोरेंट का इंचार्ज मुझे बना दिया गुरु महाराज ने उस टाइम। और वो जो गुरुसदाई रोड में वो एक हाउस है, मतलब गुरुसदाई हाउस एक्चुअली उसको ये, तो वहाँ पे गुरु महाराज कलकत्ता जब जाते थे वहाँ पे रहते थे गुरुसदाई रोड में। और मैं भी, मेरा रूम पास में वहाँ पे, मैं भी वहाँ पे रात में, तब मेरा शादी नहीं हुआ, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला गुरु महाराज को पर्सनल सेवा करने का मिला था। वहाँ पे गुरु महाराज पूरा मतलब हाथ पकड़ के मुझे सिखाया कैसे रेस्टोरेंट चलाना पड़ता है, कैसे क्या करना पड़ता है, पूरा वहाँ पे मतलब बहुत टाइम देते थे उस टाइम गुरु महाराज वहाँ पे। और सीरियल ऑफिसर सीरियल का शूटिंग भी उस टाइम आखिरी ये में था, तो उस टाइम शूटिंग भी चल रहा था, वहाँ पे चलता था। तो फिर मुझे ये याद आया, एक बार वहाँ पे जो कुक था रेस्टोरेंट का, उन्होंने चाउमीन बनाया था। तो उसका टेस्ट मतलब हम लोग हायर करके मतलब एक फेस्टिवल बना रहा था उस टाइम, चाइनीज़ फेस्टिवल इस टाइप का, एक खिचड़ी फेस्टिवल करते थे हम लोग, खिचड़ी फेस्टिवल, चाइनीज़ फेस्टिवल ऐसा रेस्टोरेंट में। तो चाइनीज़ फेस्टिवल में एक चाइनीज़ जो कुक है उनको हम लोग हायर करके लेके आया था। तो वो बनाया, तो वो गुरु महाराज टेस्ट करने के बाद गुरु महाराज को पसंद नहीं आया। तो गुरु महाराज खुद आके पूरा आके वो मतलब चाउमीन गुरु महाराज ने खुद बनाया, वहाँ पे रसोई किया और बना के उस चाइनीज़ वाला को भी खिलाया। तो वो भी खा के तो गजब है, तो बहुत अच्छा महाराज। तो ऐसा गुरु महाराज का मतलब इतना नॉलेज है हर विषय में, खास करके मतलब एक से बढ़कर एक, कोई सा भी ये में इस जो जैसा वो बताया प्रभु जी ने, जो गुरु महाराज का नॉलेज मतलब हर पार्ट में, हर विभाग में मतलब इतना नॉलेज है, जो एक्सपर्ट जो लोग हैं, जो मास्टर डिग्री वाला लोग हैं, वो भी गुरु महाराज के सामने पूरा मतलब ये हो जाता है, ढीला हो जाता है उसका, ऐसा गुरु महाराज का नॉलेज थे। और जो भी है, तो गुरु महाराज थे ही, हम लोग बहुत मिस करता है गुरु महाराज को। ये कभी इसका पूरा नहीं होगा। फिर हम लोग वहाँ से जब उज्जैन में ज़मीन मिला, तब मिलने के बाद तब हम 8-10 डिवोटी को गुरु महाराज लेके आया यहाँ पे। तो उसके अंदर अरुणाक्ष प्रभु भी था, सनंदन प्रभु नहीं, लक्ष्मीनाथ तो, हाँ लक्ष्मीनाथ तो एक्चुअली बाद में आया था। हाँ लक्ष्मीनाथ आया था पहले, वो उसको उस टाइम गुरुसदाई रोड में लक्ष्मीनाथ रसोई करने के लिए आया था एक्चुअली।
और विद्या फाउंडेशन का वो कैसेट वगैरह ये करने के लिए जिम्मेदारी दिया था। तो वहाँ से गुरु महाराज यहाँ पे भेजा था, कुछ बांग्लादेश डिवोटी आया था यहाँ पे, तो उनको देखभाल करने के लिए भेजा था। तो यहाँ पे आने के बाद गुरु महाराज बोला, अरे तुम तो रेस्टोरेंट संभालते थे, तो यहाँ पे तुम किचन देखो। तो उस टाइम किचन संभालते थे। तो एक दिन किचन में उस टाइम तब वो कम्युनिटी हॉल में था मंदिर, वहाँ पे हर संडे लगभग 1200-1400 डिवोट मतलब लोग आते थे क्लास में संडे फीस्ट में। हर संडे फीस्ट वहाँ पे मतलब बहुत ज़ोरदार बनाए जाते थे। गुरु महाराज मतलब डेली वहाँ पे रहते थे गुरु महाराज। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, थोड़ा क्षमा करिएगा। तो वहाँ पे एक दिन पूरी बनेगा, तो पूरी में गुरु महाराज मुझे समझाया, देखो इतना 1 किलो पूरी में 1 किलो आटा में इतना पूरी बनता है, तो इतना होगा तो कितना होगा, मुझे समझा दिया पूरा। तो उसी हिसाब से मैं बनाया। तो बनाने के बाद तो दोपहर में गुरु महाराज एक बार फ़ोन किया, फ़ोन करके पूछा, अमल भक्त तुम सब कितना बनाया? मैंने बोला गुरु महाराज मैं इतना बनाया। इतना किलो का इतना बना? और मुझे इतना डांट दिया, इतना डांट दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैंने क्यों डांट रहा है गुरु महाराज, इतना भयंकर डांट दिया। मैं तो बोलती बंद हो गया तो और मैं ये करके गुरु महाराज फ़ोन रख दिया, जो तुम समझ में नहीं इतना ये तुमको किचन में तुमको देना ही मुझे ये हो गया, तुम ये अभी क्या होगा, इतना लोग आएगा, ऐसा करके फ़ोन काट दिया। मेरा तो वैसे ही बैठे हुआ है किचन में क्या करूँ। फिर लगभग 10 मिनट बाद फिर फ़ोन आया, बोला अमल भक्त नहीं तुमने सही किया था। तो मुझे बहुत ये किया, बहुत मतलब प्यार, मतलब गुरु महाराज जब डांटते थे उसके बाद ही गुरु महाराज मतलब सबको बहुत ये करते थे, फ़ोन करके बुला के ये करके प्यार करते थे, मतलब तो मतलब दिल खुश हो जाता था। तो ऐसा छोटे छोटे मतलब बहुत ये है, लेकिन टाइम बहुत कम है। मैं आखिरी में जो ये गुरु महाराज के साथ जो मेरा शादी भी गुरु महाराज करवाया था कलकत्ता में। मैं शादी के लिए तैयार नहीं था, तो गुरु महाराज गंगाराम प्रभु, उस टाइम महाराज गंगाराम प्रभु थे वहाँ का कलकत्ता मंदिर का मैनेजर। तो बोला, जब गंगाराम प्रभु मुझे बोला था महाराज, जब गुरु महाराज बोला शादी करने के लिए, तो मैंने बोला अगर मैं शादी करूँ तो मैं घर चला जाऊँगा, मैं शादी नहीं करूँगा। मैं इस्कॉन में दिखता हूँ शादी मतलब गृहस्थ लोग कितना मतलब गरीबी रेखा के नीचे ये करता है, मैं ऐसा मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं तो चला जाऊँगा घर। तो ऐसा महाराज को मैं बोला था। तो महाराज गुरु महाराज तो अमेरिका में थे, तो महाराज गुरु महाराज को बोला जो हम लोग तो ऐसा बोल रहा है। तो गुरु महाराज फिर मेल किया, जो उसको बोलो मैं ही बोल रहा हूँ शादी करने के लिए, उसको अभी हाँ करने के लिए बोलो। तो ऐसा फिर आके बहुत बात है, तो बताऊंगा, बहुत लंबी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे किचन से मुझे ये मूर्ति डिपार्टमेंट में एक्चुअली आने का एक ये है, गुरु महाराज का बहुत इच्छा था उस टाइम। मूर्ति प्रोजेक्ट जो है प्रभुपाद का मूर्ति जो बनता था उस टाइम अमेरिका में बनता था। हिज ग्रेस लोचनदास प्रभु ये बनाते थे, बहुत आर्टिस्ट, बहुत वर्ल्ड में नंबर 1 आर्टिस्ट है उन्होंने। तो उनका उम्र हो गया, इसीलिए गुरु महाराज चाहते थे ये जो मूर्ति यहाँ पे बनेगा, उज्जैन में बनाएंगे गुरु महाराज, एक प्रोजेक्ट खोलेंगे मूर्ति डिपार्टमेंट। तो इसलिए गुरु महाराज ये मूर्ति बनाने के लिए अमेरिका से दूसरा आर्टिस्ट को लेके आया था, तो उनसे बनवाया मूर्ति। फिर कलकत्ता से आर्टिस्ट को लेके आया था, 2-3 आर्टिस्ट, वो लोग भी बनाया था प्रभुपाद का मूर्ति। तो गुरु महाराज का पसंद नहीं आ रहा था। और कृष्णानगर से नेशनल अवार्ड मिला हुआ आर्टिस्ट से भी बनाया था, तो वो भी गुरु महाराज का पसंद नहीं हो रहा था। तो उस टाइम मैं किचन था, स्टील किचन इंचार्ज था। तो वहाँ पे
तब मैं सबके लिए खाना वगैरह सब, क्योंकि डिप्टी कम था, मैं ही किचन इंचार्ज में एक मेरा हेल्प ये था, कुक था, और जो कहाँ पे खाना देना है, क्योंकि बहुत सारी मकान किराए पे रखा था आसपास। तो तब ये मंदिर ये नहीं हुआ, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो मैं ही वो सबके लिए प्रसाद मैं ही जाके दे के आता था, मैं ही सब्जी बाज़ार करते थे, एक ऑटो थे, ऑटो से सब्जी खरीद के ला के, मतलब सब कुछ, मतलब बहुत सेवा का ये था उस टाइम। तो मैं देखता था जो बना रहा है, नहीं हो रहा है, गुरुमास जा रहा है, पसंद नहीं हो रहा है। तो तब मेरा मन में ऐसा ये हुआ, जो अगर मैं एक बार ट्राई करूँ तो मुझे लग रहा है मैं इससे अच्छा बना पाऊँगा, क्योंकि ये गुरुमास को मतलब पैसा नष्ट हो रहा है, ये बना नहीं पा रहा है। तो मैं एक बार गुरुमास को बोला, गुरुमास मैं एक बार ट्राई करूँ क्या? तो गुरुमास को पहले मालूम थे जो मेरा आर्टिस्टिक नॉलेज थोड़ा है, पहले मैं स्कूल कॉलेज लाइफ में मैं फ़ोटो अच्छा बना सकते थे, सबको किसी को देख के ऐसा कि ऐसा मैं बना सकते थे, ये मेरा हॉबी था। तो ये गुरुमास का नॉलेज में था। तो गुरुमास बोला ठीक है तुम करो। तो मैं ये जो छोटा गुरु परंपरा का जो प्रभुपाद है ये बनाया छोटा साइज में। बनाने के बाद गुरुमास जब देखा तो गुरुमास मुझे एकदम गले लगा लिया। तो बोला जो अरे, तो बोला इसके बाद तुम भक्ति सिद्धांत बना पाओगे? हमने गुरुमास आप अभी प्रभुपाद बना ही दिया, तो ये आप आशीर्वाद रहेंगे तो बनाऊंगा ज़रूर, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। तो फिर गुरु परंपरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, ऐसा करते करते सब पूरा बना दिया। बनाने के बाद गुरुमास बहुत खुश हुआ। उसके बाद वो जो आर्टिस्ट वगैरह जो थे बाहर का, जो यहाँ पे रहते थे, तो सबको गुरुमास बोला अरे देखो ये तुम लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, तुम कर नहीं पा रहे यार, ये कभी मूर्ति बनाया ही नहीं, ये बना के तुम्हारा नाक कान काट दिया, तो तुमको क्या ज़रूरत है? तो बोला, उसके बाद से गुरुमास बोला आपसे ये मूर्ति डिपार्टमेंट तुम देखो, इसका इंचार्ज तुम है, तुम इसको आगे बढ़ाओ। और सबको आर्टिस्ट को सबको मतलब ये कर दिया, छुट्टी कर दिया। तो तब से ये गुरुमास का ये जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मालूम नहीं कैसे होता है, सब प्रभु का मालूम है। तो उसके बाद आखिरी में जो ये हुआ, बीच में बहुत सारी ये है, मैं आखिरी में और 2-4 मिनट बताऊंगा, टाइम कम है। तो ये जब ये अभी जो काम चल रहा है, TOVP का काम चल रहा है, तो एक दिन फ़ोन आया दोपहर 12-1 बजे, जे अमल भक्त तुम कहाँ हो, क्या कैसे हो, सब ठीक है? बोला हाँ ठीक है। बोला तुम अभी कौन सा टाइम पे फ्लाइट है, टिकट करके तुम और अभयचरण अभी आ जाओ मायापुर में। तो मायापुर में हम लोग से 3:30 बजे फ्लाइट था, जो भी है मैं अभयचरण प्रभु ये करके गया मायापुर में। हम लोग रात 3 बजे पहुँचा। जाके पहुँचने के बाद फिर मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, टाइम कम है। तो वहाँ पे ये जो मायापुर TOVP का जो मूर्ति, वहाँ पे गुरुमास विजिट करने के लिए गया था, जो गुरु परंपरा मायापुर के लिए बन रहा है। तो गुरुमास का पसंद नहीं आया था, तो उसको गुरुमास ने वहाँ पे ये कर दिया था। कृष्ण किशोर प्रभु को मालूम है, साथ में थे आप उस टाइम। तो फिर मैं जाने के बाद गुरुमास बोला देखो अमर भक्त, ये जो मैं जिम्मेदारी लिया ये मूर्ति बनाने का, तुम्हारे ऊपर ये करके ये तुम कर पाओगे ना? हमने गुरुमास आपका आशीर्वाद रहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। तो उसके बाद तो गुरु परंपरा यहाँ पे बन रहा है। बनने के बाद गुरुमास वहाँ पे अमेरिका जाने के 2 दिन पहले गुरुमास आए थे यहाँ पे अप्रूव करने के लिए। उस टाइम प्रभुपाद का मूर्ति मिट्टी से कंप्लीट किया, उसका मोल्ड नहीं बनाया था। तो वहाँ पे गुरुमास वो देख के गए, गुरुमास को बहुत पसंद हुआ था। हेड थोड़ा बड़ा हुआ था, गुरुमास मेजरमेंट करके हर चीज़ मतलब देखा, आप भी थे शायद वहाँ पे,
देखने के बाद बोला हेड थोड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा इसको 1 इंच छोटा कर दो। तो मैंने छोटा कर दिया। करने के बाद उसका जो ये हो गया, गुरु परंपरा का जो 4 मूर्ति गुरु महाराज अप्रूव करके गया, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी को गुरु महाराज अप्रूव नहीं कर पाया। तो यहाँ से जाने का 2 दिन पहले मूर्ति प्रोजेक्ट विजिट किया। वही मेरा साथ गुरु महाराज का आखिरी विजिट है वहाँ पे। तो गुरु महाराज अमेरिका जाने के बाद जब हॉस्पिटल जाने का 2 दिन पहले जो फ़ोन आया मेरा पास, गुरु महाराज फ़ोन करके पूछा जो प्रभुपाद का मूर्ति कहाँ तक हुआ। अमल भक्तों तुम पहले पूछा कैसे है तुम, सब ठीक है, सब ठीक। तो बोला प्रभुपाद का मूर्ति कहाँ तक हुआ। मैंने बोला गुरु महाराज तो अभी कास्टिंग उसका मोल्ड बन रहा है। तो गुरु महाराज का इतना चिंता था, तो मुझे पूछा अच्छा अमल भक्तों वो जो मायापुर में जो बनाया वो लोग एक्चुअली थोड़ा छोटा हो गया था मूर्ति प्रभुपाद। तो बोला वो मूर्ति तुम जो बना रहा है वो उनसे अच्छा तो होगा ना। मतलब इतना गुरु महाराज का चिंता था, जो ये जो जिम्मेदारी गुरु महाराज यहाँ पे लेके आया तो वो ठीक ठाक होगा क्या नहीं। अगर नहीं होगा तो एक ये आ जाता है, मतलब एक प्रेस्टीज मैटर हो जाता है। तो गुरु महाराज से बार बार जब भी ये होता था अमल भक्त तो ठीक होगा ना, उससे तो अच्छा बनेगा ना, उससे सब ठीक हो रहा है, कैसा हो रहा है, सब गुरु महाराज जाके देखते थे। तो ऐसा ये होने के बाद फिर मतलब गुरु महाराज मुझे बोला तुम एक फ़ोटो भेजो उसका अभी कैसा हो रहा है, और पहले का मूर्ति उन लोगों ने जो बनाया उनका तुम जो बनाया उनका फ़ोटो भेजो। भाई फ़ोटो भी भेजा गुरु महाराज जब अमेरिका से हॉस्पिटल जाने का 2 दिन पहले। तो गुरु महाराज फ़ोटो देख के गुरु महाराज खुश हुआ। तो अभी मुझे इतना ये होता है, उसके बाद जो मैं मूर्ति बनाता हूँ गुरु परंपरा जो बन रहा है TOBB के लिए षोडश गोस्वामी, तो मतलब गुरु महाराज और कभी अप्रूव करने के लिए वहाँ पे नहीं आएंगे। वहाँ पे जब ये मूर्ति जब मायापुर TOBB में जब प्रतिष्ठा होगा तब मैं खुद को कैसे कंट्रोल रखूँगा मुझे मालूम नहीं। तब मैं गुरु महाराज को ढूंढूंगा कहा। जब भी अभी मैं मूर्ति में हाथ देता हूँ तो गुरु महाराज को बात याद आता है। अगर गुरु महाराज रहते तो यहाँ पे आके मुझे बताते थे नहीं अमल भक्त ऐसे नहीं, ऐसा यहाँ पे ऐसा करो, यहाँ पे ऐसा करो, ये थोड़ा छोटा करो, इसको थोड़ा बड़ा करो। हरे कृष्ण।